السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے کے سلسلے میں آج کی اس 5ویں مجلس میں ہم آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ جو باتیں آگے بیان ہوں گی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو بھی ان کی زندگی ہے اس میں نوجوانوں اور جوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور الحمدللہ ابھی میری نظروں کے سامنے جو لوگ ہیں ان کا تعلق بھی اسی عمر سے، اکثریت 25 سے یا 20 سے 40 سال کی عمر کے درمیان۔ تو ہم سنتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات۔ حضرت جعفر 4 بھائی ہیں، مسلم، عقیل، جعفر، علی، 4 بھائی، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں کے بیچ میں 10 سال کا گیپ، چاروں کے بیچ میں 10 سال کا گیپ ہے۔ ان کی ایک بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالی، حضرت علی کی بہن، حضرت جعفر کی بہن ہے۔ انہی کے گھر میں آرام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے، جبریل آئے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے کر کے آئے۔ پیدا کب ہوئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 19 یا 20 سال کے چھوٹے ہیں، 19 یا 20 سال کے، گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہجرت سے 33 سال پہلے پیدا ہوئی، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 20-21 سال۔ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، نبوت و رسالت کے مقام پر آپ پہنچے تو شروع میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہی شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کتنے سال چھپ کر دعوت و تبلیغ کیا؟ 3 سال، 3 سال چھپا کر کے، قریبی لوگوں سے ملا کر کے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور سے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا، تو پھر ظلم و ستم کا دور بھی شروع ہو گیا، تو پھر آپ ایک صحابی کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور اس کو ہی دعوت کا مرکز اور سینٹر بنا لیا۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر تھا بالکل مکہ کے کنارے تھا، وہاں بہت زیادہ آنا جانا لوگوں کا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں شفٹ کر لیا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے، یعنی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم گنتی کریں تو ترتیب میں 31 نمبر پر 31 حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے اسلام قبول کرنے والوں، گویا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا تو 6 مہینے گزرنے کے بعد، نبوت کے 4تھے سال 6 مہینہ گزرنے کے بعد سے مکہ والوں نے کیا کیا؟ ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے آدھے سے نصف سے شروع ہو کر کے
5वें साल निस्फ तक, आधे 6 महीने तक, आधे साल तक पहुंचते पहुंचते जुल्म सितम बिल्कुल शबाब पर पहुंच गया, बिल्कुल शबाब पर। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हबशा का बादशाह जो है बड़ा अच्छा आदमी है, इंसाफ करने वाला है और मजलूमों का साथ देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए किराम को हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। शुरू में पहली वाली शिफ्ट में चंद एक सहाबा गए, जिनमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बीवी, और फिर दूसरी शिफ्ट में तकरीबन 83 मर्द और 18 औरतें, यानी ये कुल मिलाकर के दोनों टीम को मिलाया जाए तो तकरीबन 125 लोग होते हैं। ये हिजरत करके कहाँ चले गए? हबशा चले गए। हबशा पहुंचे वहां तो इधर काफिरों को बड़ी परेशानी हुई कि हम जिन लोगों के पीछे पड़े हैं, जिन लोगों को हम अपने मजहब अपने दीन में लाना चाहते हैं, वो लोग हमारा इलाका छोड़कर किसी और इलाके में जा रहे हैं। तो इन लोगों ने 2 लोगों को तैयार किया, एक अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, और एक अब्दुल्ला बिन रबीआ। इन दोनों को तैयार किया कि तुम जाओ और हमारी तरफ से हबशा के बादशाह से बात करो और ये कहो कि ये हमारे गुलाम लोग हैं, ये हमारी लौटियां हैं, ये हमसे भाग करके आपके यहाँ आ गई, इन्हें वापस कर दीजिए। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े डिप्लोमेटिक आदमी हैं, बड़े सियासी आदमी हैं, बड़ी दूर रस निगाह उनकी है और बहुत ज्यादा चालाक और होशियार है। जिस मैदान में उनको डाल दिया जाए उस मैदान के माहिर बन करके वो उभरे। और फिर जब इस्लाम लाए, मुसलमान हुए, ये और खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा, ये तीनों एक साथ मुसलमान हुए थे। ये तीनों एक साथ मुसलमान हुए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मक्का के लोगों ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया। यानी तीनों अपने मैदान के माहिर आदमी, उन्हीं में से अम्र बिन आस, मक्का वालों ने इन्हीं को मुंतखब किया कि जाइए हमारी तरफ से बात कीजिए। अब अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ दोनों मक्का से हबशा आ गए। कैसे आए? तोहफे लेकर के, गिफ्ट लेकर के, हदाया लेकर के। इसलिए कि किसी को अपने फेवर में करना है तो उसको क्या देते रहो? हाँ, इलेक्शन आता है तो इसीलिए तोहफे बांटे जाते हैं। हाँ, रिश्वत, इसे रिश्वत भी कह सकते, मोहब्बत में हो तो तोहफा ही, मकसद के लिए हो, अपना मनवाने के लिए हो तो क्या रिश्वत है वो। तो इन लोगों ने तोहफे तहफ, और सिर्फ बादशाह के लिए नहीं, बादशाह के कारिंदों के लिए भी, हवारियों मवारियों उज़रा के लिए जो आसपास बैठे रहते हैं, सब के लिए तोहफे लेकर के लोग पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो पहले से ही अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ ने बादशाह के आदमियों से मुलाकात करके तोहफे दे करके उन्हें अपने फेवर में कर लिया कि देखो हम बादशाह से बात करने वाले हैं, तुम भी हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहना। तैयार हो गए लोग, ठीक है, आप जैसा कहें, तोहफा मिल गया तो हम तुम्हारे फेवर में आ गए। अब बादशाह के दरबार में सुबह दरबार लगा, बादशाह के दरबार में पहुंचे अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ, अपना मुकदमा रखा, अपनी बात रखी कि हमारे यहाँ से कुछ लोग भाग कर आपके पास चले आए हैं, आपने सुना है पनाह दे रखा है, आप उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह बड़ा अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, एक तरफ की बात सुनकर के फैसला नहीं किया, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। जब 2 आदमियों की बात हो तो सिर्फ एक आदमी की बात सुनकर के फैसला ना करें जब तक दूसरे की बात ना सुने। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं उन लोगों को भी बुलाता हूं, बातचीत करता हूं, उसके बाद जैसा होगा फैसला कर लेंगे। अब बादशाह नजाशी ने, जिनका नाम असहमा है, बुलाया मुसलमानों। अब मुसलमान तो डर गए कि भाई पनाह मिल गई थी, अब क्या बात है कि अब बुलाया जा रहा है दरबार में, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। लेकिन बहरहाल मुसलमानों ने आपस में फैसला किया कि बादशाह जो भी पूछेगा हम सही सही जवाब देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ इसलिए कि झूठ बोलकर काम तो चल सकता है लेकिन बाद में नतीजा बहुत खराब आता है, बहुत खराब आता है, एतमाद उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है इंसान का, फिर वो आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए झूठ बोल करके काम मत चलाइए, किसी भी मैदान में, किसी, चाहे घर में हो, तिजारत में हो, कहीं पर भी आप रहें, झूठ बोलकर काम मत चलाइए। काम तो चल जाएगा लेकिन जिंदगी भर के लिए आप अपनी इज्जत गंवा देंगे, जिंदगी भर के लिए। तो कहा हम लोग सच बोलेंगे। अब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो मुसलमानों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमारी तरफ से बोलेगा कौन। अब बोलने के लिए किसको डिसाइड किया? हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये कितने साल के हैं? अभी आप हिसाब लगाओ कितने साल के? 25, 26 आसपास हुई।
125 की टीम में बोलने के लिए किसको मुंतखब किया गया? 25 साल के नौजवान। हमारे यहाँ का 25 साल का नौजवान, हाँ, बोलना आता है उसको? हाँ, उसको स्नैप लेना आता है, बराबर बराबर लेता है, पोज उसे सब मालूम है, कैसे कैसे फोटो लेना है उसे सब मालूम है उसे, कहाँ फोटो अच्छी आती है, किस एंगल से अच्छी आती है, यहाँ वहां बैठ करके गेम खेल रहा है, रातों को टाइम पास कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पूरी पूरी रात गुजार रहा है। 25 साल के नौजवान को बादशाह के दरबार में बोलने के लिए आगे बढ़ाया कि आपको बोलना है। कमाल की बात है। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ तो था उनके अंदर ना। बहरहाल आए, बादशाह ने बात रखी कि भाई सुना, ऐसा ऐसा क्या बात है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ उन्होंने फैसला किया। बादशाह के सामने निहायत डट कर, जमकर अपनी बात रखी। बात क्या रखी? बात सुनते हैं, तकरीर, छोटी सी तकरीर है। कहते हैं ना, अल्फाज जादू होते हैं। इन्ना मिनल बयान लसिहरा, आप अपने बयान से, अल्फाज से, जुमलों से आप सामने वाले को अपने फेवर में कर सकते हैं, सामने वाले को अपने फेवर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि तुम लोग मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए तुम लोग ऐसी बात करते हो कि मुझे लगता है कि वही बंदा हक पर है। झूठ बोल करके काम चलाओगे तो समझ लो कि मैंने तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दिया है। समझ में नहीं आता अच्छे अच्छों को कि सामने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इतनी प्यारे अंदाज में बात करता। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच के साथ, लेकिन पूरी हिकमत और बसीरत के साथ उन्होंने बादशाह के सामने बात रखी। सबसे पहले अपना माजी बताया। उनकी तकरीर में मैं तोड़ तोड़ कर बयान कर रहा हूं कि उनकी तकरीर में, स्पीच में है क्या। सबसे पहले अपना माजी रखा, पास्ट, कि हम थे कौन, हमारा तारुफ क्या है, और ऐसी बात रखी जिसका पूरा अरब शाहिद है। सारा अरब गवाह था कि ये चीजें इन लोगों के अंदर थी। क्या कहा हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु? ऐ बादशाह, हम जाहिल थे, कोई शक है? मक्का में गिनती के पढ़े लिखे लोग थे, गिनती के। अगर आप उस समाज में पढ़े लिखे, जिनको पढ़ना भी आता और लिखना भी आता, अगर आप काउंट करें ना, आपकी उंगलियां खत्म नहीं होंगी, आदमी खत्म हो जाएंगे। इस कदर जहालत थी, तो काम जाहिल थे। नंबर 2, बुतों की पूजा करते थे, कोई शक है? नहीं। 360 तो खाने काबा में रखे, 360 खाने काबा में रखे, लात, मनात, उज्जा, हुबल की कसमें खाई जा रही, कहा बुतों की पूजा करते थे। नंबर 3, हम मुर्दार खाते थे, मुर्दे भी खाते थे लोग। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम, तुम्हारे लिए क्या है? मुर्दा हराम। वो लोग खाते थे, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले उसी का नाम लिया। जब हराम चीजों की लिस्ट गिनवाई तो सबसे पहले कहा कि मुर्दा हराम है, इसलिए कि वो लोग खाते थे। नंबर 4, बेहयाई के काम करते थे। अब बेहयाई के काम कौन कौन से करते थे? खाने काबा का नंगा तवाफ, खाने काबा का नंगा तवाफ। और अल्लाह ने सूरह आराफ में कहा, ये लोग कहते थे कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने कहा कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तुम अल्लाह पर इल्जाम लगा, अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, तुम अल्लाह के ताल्लुक से वो बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। और बेहयाई क्या करते थे लोग? ज़िनाकारी आम थी, ज़िना के अड्डे खुले हुए थे, जैसे आजकल बड़े बड़े शहरों में होते हैं। बाकायदा ऐसी औरतों के घर पर झंडा लगा रहता था कि दूर से आदमी पहचान लेता था कि यहां अपना काम बन सकता है। इस घर में जाओ तो इस घर में बेहयाई का काम होता है। इस कदर फहाशी और बेहयाई आम थी। अगली बात क्या कही? नंबर 5, रिश्तेदारियां तोड़ते थे। जरा सा फायदा कहीं और रिश्ता तोड़ देते थे, कहीं भी फायदा हो, रिश्ते, भतीजे के माल पर कब्जा कर लिया, भाइयों को कुछ नहीं दिया, जो मजबूत था वो कब्जा कर लेता था सारी चीजों पर, रिश्तेदारियां तोड़ देते। नंबर 6, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। ये 6 बुराइयां वो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं जो सारा अरब तकरीबन करता था, इल्ला माशाअल्लाह चंद एक लोग बचे हुए थे उससे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जमाने जाहिलियत में, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन जैसे कई एक नाम है जो जमाने जाहिलियत में भी बचे हुए थे। ये बुराइयां वो लोग नहीं करते थे। अच्छा, पास्ट रख दिया, माजी। अब अपनी तकरीर में आगे क्या कहा? कहा ये सब हम कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? क्या हुआ अचानक? फिर ऐसी सूरत हाल बनी कि अल्लाह ने हम में से ही एक आदमी को नबी और रसूल बना करके हमारे दरमियान
भेज दिया। यानी हम ये सब कर रहे थे, इसी दौर में अल्लाह ताला ने हम पर एहसान कर दिया कि अल्लाह ने हमारे दरमियान एक नबी और रसूल बनाकर भेजा। और वो नबी और रसूल कौन है? कहीं किसी और इलाके से नहीं आया, वो हमारे ही इलाके का था, बल्कि है जिसका नसब हम जानते हैं, खानदान हम जानते हैं, जिसका किरदार हम जानते हैं, जिसकी एक एक चीज हम जानते हैं। वो सच्चा है ये भी जानते हैं, अमानतदार है ये भी जानते हैं, वो पाक दामन है ये भी हम जानते हैं। यानी इस माहौल में जिसमें हम रह रहे थे, उसी माहौल में रहने वाले हम में से ही एक आदमी को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया, लेकिन वो बंदा उस माहौल में रहते हुए भी उन बुराइयों में मुलविस नहीं था। ये बात उन्होंने रख दी। अब तीसरी बात जो कही हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि उस बंदे को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा, लेकिन उन्होंने किया क्या हमारे लिए? कहा कि उन्होंने हमें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। सारे अंबिया ने यही किया, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह को मानो, सच बोलने का हुक्म दिया कि सच बोलो, अमानतें अदा करने की ताकीद की कि कोई तुम्हारे पास अमानत रखे तो खयानत ना करो, सिला रहमी करने का हुक्म दिया कि रिश्तेदारी जोड़ो, रिश्तेदारी तोड़ोगे तो बहुत नुकसान है, और साथ ही साथ हमें अच्छा पड़ोसी बनने का हुक्म दिया और हराम कामों से रुकने की ताकीद की। ये सारी तालीमात उन्होंने हमें दी। अब फिर आगे क्या कहा हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों ने उस नबी और रसूल की बात क्या कर लिया? मान लिया, कबूल कर लिया। जब हमने कबूल किया तब सूरत हाल बिल्कुल क्या हो गई? पलट गई। बस इसी बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। हमारा जुर्म सिर्फ इतना ही है, कोई गलत काम बज़ाहिर हमने नहीं किया है, हमारी कौम इसी बात पर हमारी दुश्मन बन गई। और सिर्फ दुश्मन नहीं बनी, तकलीफें देना शुरू किया, जुल्म सितम करना शुरू किया, और दोबारा से बुतों की पूजा की तरफ बुलाने लगे। मजबूर किया, इतना मजबूर किया कि जिसकी वजह से हमने अपना मुल्क छोड़ दिया और हमने आकर के आपके मुल्क में पनाह ले ली। यह हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर है, जिसमें माजी भी बताया, हाल भी बताया, मुस्तकबिल भी बताया, उस नबी और रसूल का किरदार भी पेश किया। अच्छा, ये तरतीब क्यों रखी आप जानते हैं? क्योंकि बादशाह क्या था? ईसाई था। और ईसाई भी किसको मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। खास तौर से जो मजहबी आदमी हो उसे जरूर पता होगा कि ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये आम आदमी के ताल्लुक से बातें नहीं है, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही मामला हुआ। अल्लाह ने उनको यहूदियों के दरमियान भेजा, बनी इसराइल के दरमियान। वो लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे थे, तरह तरह की बुराइयां कर रहे थे। अल्लाह ने उनको इंजील नामी किताब दी, उन्होंने अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। नतीजा क्या हुआ? कौम दुश्मन बन गई, कुछ लोग ईमान लाए और फिर उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की क्या की? प्लान बना लिया। यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे यहूदी, सेम मामला, वही पूरा तरीका जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इख्तियार किया बादशाह के दरबार में बयान करने के लिए। अच्छा, ये बात जब सुनी बादशाह ने, नजाशी ने, तो कहा अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम्हारा ये जो जिनको तुम नबी कह रहे हो, क्या उन पर कोई कलाम भी नाजिल हुआ है? कहा कुछ पढ़ करके सुनाओ। अब दोबारा से हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत और बसीरत की दाद दीजिए आप 25 साल के नौजवान की। हमारे यहाँ का नौजवान जज्बाती होता है ना, खाली गुस्सा आता है उसको, खाली गुस्सा उसको। क्यों? गोश्त खा के इतना गोश्त खाता है, गुस्सा बहुत है। नहीं, हमेशा जज्बात से फैसले नहीं होते, गुस्से से फैसला नहीं होता। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी बसीरत, जैसी हिकमत के साथ हमें जिंदगी में हमेशा फैसला करना चाहिए। उन्होंने बादशाह की इस फरमाइश के जवाब में क्या पढ़ा? सूरह मरियम। क्यों? मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का, यानी ईसाइयों के नबी का तज़किरा है, इसलिए। अब एक तो कुरान की आयत है, दूसरे जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तिलावत। बाज़ उलमा ने लिखा है, अगर मेरा ज़हन साथ दे रहा है, कि बड़ी प्यारी तिलावत थी उनकी, पढ़ना शुरू। और दूसरे आप गौर करें, आप जब सूरह मरियम पढ़े ना या सुने, खास तौर से तन्हाई में, तो आप पर एक अलग कैफियत तारी होती। और अल्लाह ने इस सूरा का आगाज कहां से किया है? काफ हा या ऐन साद। फिर उसके बाद सबसे पहले ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर मरियम का जिक्र है, फिर और नबियों का जिक्र है। यानी मरियम के साथ ईसा अलैहिस्सलाम का फिर और नबियों का तज़किरा है।
اور پھر جنت جہنم اور دیگر ساری چیزیں، قیامت کا منظر، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، مریم کا تذکرہ آیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مریم کا تذکرہ آیا کہ مریم پاک دامن خاتون ہے، جبریل آئے اور جبریل نے انہیں ایک بچے کی خوشخبری دی، انہوں نے ساری بات کہی کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں زانیہ نہیں ہوں، میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے کہا ہے میرے لیے آسان ہے۔ پھر وہ حمل سے ہو گئی، انہوں نے پھونک مارا گریبان میں، حمل سے ہو گئی، درخت کے تنے کے سہارے لے کر کے آ کر کے بیٹھ گئی، وہ ساری تفصیلات جو آپ جانتے ہیں۔ تلاوت کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، بچپن میں بولے، پھر آخر میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، اور یہی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ سچی بات ہے جس کے سلسلے میں یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت بیانی کے ساتھ قرآن کی آیتیں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ اب جب تلاوت ختم کی، سارے لوگوں پر ایک سکتہ طاری ہے، ایک گہری خاموشی ہے، اور بادشاہ کی اور اس کے مصاحبین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 6 آخری آیت پڑھیں آپ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی، اس کے ساتھ مشرک، سب سے بڑے دشمن۔ اگر مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ ہے، کون ہے؟ عیسائی۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اس لیے کہ ان کے درمیان علماء پیدا ہوئے، ان کے پاس علم تھا ان کے پاس، اور اسی بنا پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقریر کی، تقریر کے بعد تلاوت کی، وہ بادشاہ ایک طرح کا عالم بھی تھا، اس کے مصاحبین سارے لوگ رونے لگے۔ اللہ نے ذکر کیا، پارہ نمبر 7 آپ شروع کریں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ وہ لوگ جب سن رہے تھے جو ان کے طرف نازل کی گئی ہے، تو اللہ کہتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو اور سچائی کو پہچان لیا۔ تلاوت ختم ہوئی، بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، یہ بعض روایتوں میں ہے کہ دوسرے دن کی یہ بات ہے، بہرحال بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ کوئی آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے، یعنی عمرو بن عاص کو، عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے، یہ بات تو بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، سچائی ہے یہ۔ پھر اعلان کر دیا کہ جاؤ تم لوگ میری حکومت میں رہو، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تمہیں یہاں سے کوئی بھگا نہیں سکتا۔ اب مجلس ختم ہوئی، عبداللہ بن ربیعہ، عمرو بن عاص ایک طرف ہوئے، وہ دن ختم ہوا، تو عبداللہ بن ربیعہ کو لگا ہم لوگ ہار گئے ہیں، اب ہم لوگ کو جانا پڑے گا۔ تو عمرو بن عاص نے کہا نہیں، ایک ٹریک میرے پاس اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کل بتائیں گے۔ اب دوسرا دن آیا، پھر سے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے سامنے بات رکھی، کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ لوگ آپ کے نبی کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا پھر سے بلاؤ۔ اب پھر سے بلایا گیا تو پھر سے ڈر گئے کہ اب کیا بات ہو گئی، کل ہی تو اعلان کیا کہ اچھے سے رہو، اب کیا بات ہو گئی؟ کل ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں لیکن سچ ہی بولیں گے۔ اب پھر سے آئے، کہا سنا تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں کچھ کہتے ہو، کیا عیسیٰ کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ، پوری جو بات تھی، کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ کا خاص آرڈر، مطلب اللہ کے خاص حکم سے وہ پیدا کیے گئے ہیں، ہاں، اور وہ کلمت اللہ، روح اللہ، بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، پھر قیامت کے قریب دوبارہ آئے۔ یہی پورا عقیدہ جو اسلام کا ہے، وہی ساری بات رکھ دی۔ اب بادشاہ نے تنکا اٹھایا زمین سے اور کہا جتنا تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے آگے اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، جو بات تم نے کہی ہے وہی سچ ہے، جاؤ تم لوگ آزادی کے ساتھ میری حکومت میں رہو، تمہیں کوئی بھی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ان دونوں سے کہا نکل جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے، سارے تحفے سب واپس کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب ہار گئے، شکست کھا گئے یہ دونوں، اور سارا کچھ لے کر کے مکہ پہنچے۔ تب مکہ والوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کا ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ مکے میں کر سکتے ہیں، مکے سے باہر ہم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔
اب یہاں مسلمان کامیاب ہو گئے. اب نبوت کا کون سا سال ہے؟ 5واں سال. 5واں سال ہے یہ. اس کے بعد سے لے کر کے اگلے تقریباً 8 اور 5 13 تقریباً 13 سال تک، 13 سے 14 سال تک جعفر رضی اللہ عنہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے. وہ حبشہ ہی میں تھے. 8 سال کے بعد ہجرت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کہاں؟ مدینے. صحابہ جو مکہ میں تھے وہ بھی آ گئے، حبشہ کے بھی کچھ مہاجرین یہاں آ گئے، یعنی مدینہ آ گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابھی جعفر کو آنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس لیے ان کے حالات اس دوران کیا ہوئے وہ اس کی تفصیلات نہیں ہیں. اب ہم سیدھا پہنچتے ہیں سن 7 ہجری میں. شروع میں بالکل خیبر فتح ہوا. خیبر فتح ہوا اور جس دن خیبر فتح ہوا اسی دن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ پہنچے. اور اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ جعفر آ گئے ہیں، آپ اٹھے، گلے لگایا جعفر کو، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں یہ اعلان کیا مجھے نہیں پتا کہ مجھے آج کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے یہاں آنے کی. آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے. خیبر فتح ہوا، اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی جگہ ملی ہے، اتنا مال ملا ہے. آپ کو پتا ہے خیبر کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان غریب تھے، صحابہ غریب تھے. لیکن جب خیبر فتح ہوا نا اتنی زمینیں آئی ہیں صحابہ کے حصے میں کہ صحابہ کی اکثریت مالدار ہو گئی. جو لوگ لڑنے والے تھے انہیں کو مال غنیمت ملتا تھا، جو میدان میں جاتے تھے. اکثریت صحابہ کی مالدار، اتنی زمینیں ملی ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، یہاں اس علاقے کے خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے یہاں آنے کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں رہتے ہوئے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قربانی دی اور یہ ساری کوششیں انہوں نے انجام دی. اب یہ 7واں سال ختم ہوا، ہجرت کا 8واں سال آیا. تو ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہونے سے پہلے ایک جنگ ہوئی، غزوہ جنگ موتا. ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اس طرف اشارہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم بنائی، 3000 صحابہ کو بھیجا آپ نے، اور آپ نے 3 کمانڈر منتخب کیے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان تینوں کو بالترتیب آپ نے کمانڈر بنایا اور کہا زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر کمانڈر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے، وہ شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہیں بنا لیں. اب جنگ شروع ہوئی. میں نے کہا تھا جنگ کی ساری تفصیلات ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں بیان کریں. جنگ شروع ہوئی، زید بن حارثہ شہید ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھایا، ان کا ایک ہاتھ لڑتے لڑتے کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، اپنے سینے سے جھنڈا چمٹا لیا اور اس حال میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بعد میں جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کی، ہمیں ملی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر 90 سے زائد زخم ہیں، 90، اور سارے زخم سامنے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف ایک بھی زخم نہیں. 90 زخم. آپ سوچیں کیا حالت ہوئی ہوگی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا زید بن حارثہ شہید. اب زید بن حارثہ کون ہے آپ جانتے ہیں، میں نے تذکرہ کر دیا. ایک زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر کے ان کو مخاطب کیا گیا، زید بن محمد، اور ان کا ٹائٹل حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں یہ. وہ شہید ہو گئے. پھر جعفر کی شہادت کی خبر ملی، عبداللہ بن رواحہ کی. آپ سوچیں صحابہ کا غم کتنا بڑا ہوگا. 3 بڑے لوگ، اور تینوں معمولی آدمی نہیں، تینوں کی تینوں کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، تینوں شہید ہو گئے. لیکن ایک خوشخبری بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا خوشخبری دی؟ آپ نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، لیکن ابدلہ اللہ بجناحین یطیر بہما فی الجنہ، اللہ نے ان کو دونوں ہاتھ کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں، 2 پر عطا کیے ہیں، جن دونوں پروں کی مدد سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اڑتے ہیں. اسی لیے ان کا 2 ٹائٹل ہے، ایک طیار، طیار مطلب اڑنے والا،
फ्लाइट को भी बोलते हैं क्योंकि उड़ती है वो, तैयार या ताइरा उसको बोलते हैं। तो इनका एक टाइटल है तैयार, ता से, वो उर्दू वाला तैयार नहीं, तैयार ता या अलिफ्रा, तैयार इनका एक टाइटल है। दूसरा है जुल जनाहैन, दो बाजू वाले, दो पर वाले अल्लाह ताला ने, इसीलिए शुरू में मैंने आयत पढ़ी, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं, फरीहीन, और जो कुछ अल्लाह की तरफ से उनको मिला उस पर खुश है। उनकी दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन आखिरत की जिंदगी में क्या है, अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन कैसे, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तो जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह ने उनको दो पर दे दिए, उसकी मदद से वो जन्नत में उड़ते हैं। साहबा परेशान हुए, घर वाले हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परेशान हुए। इनकी बीवी हैं अस्मा बिनते अमीस या अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब इनका किरदार, इनकी बीवी का चूंकि नाम आया तज़किरा में करूं, कितनी अजीम खातून है ये, कितनी अजीम खातून है। पहले किसकी बीवी है, अभी किसकी, जाफर रज़ियल्लाहु ताला। अब ये शहीद हो गए जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी शहादत के बाद जानते हैं इनसे किसने निकाह किया, अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, इनकी शहादत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब वफात हो गई सन 13 हिजरी में, तब इनसे किसने निकाह किया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। आप सोचिए कितनी अजीम खातून है, 3 बड़े बड़े सहाबा की ज़ौजियत में रहने का शरफ हासिल हुआ है, और तीनों मामूली नहीं है। एक है उम्मत का सबसे अफजल इंसान, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। एक हजरत अली हैं, अहले बैत में से हैं, चौथे खलीफा हैं, मकाम व मर्तबा ऊंचा है। एक जाफर हैं, शहीद भी हैं, और जो है मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां अंजाम। 3 बड़े बड़े सहाबा की ज़ौजियत में रहने का हजरत अस्मा बिनत अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शरफ हासिल हुआ। तो ये हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के हवाले से चंद बातें। अच्छा, इनकी तदफीन कहाँ हुई, उर्दून में। उर्दून को आजकल क्या बोलते हैं, जॉर्डन, जॉर्डन के इलाके में, क्योंकि जहां जंग हो रही थी वो वही इलाका है, उर्दून का इलाका, वहीं पर उनकी तदफीन हुई। सिफात और खूबियां मैं जिक्र कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म होगी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफात 2-3 सिफात बड़ी अजीम है। नंबर 1, नेकी में सबकत, जहां कहीं मौका मिलता था अच्छाई करने का, अच्छाई करे। पहले भी, यानी नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल बनाए जाने से पहले, जबकि अभी और एकदम बिल्कुल यंग है, छोटे हैं एकदम, लेकिन जहां कहीं नेकी का मौका मिलता था नेकी करते थे। दूसरी चीज, मिस्कीनों पर बड़े मेहरबान थे, बहुत अपना माल लुटाते थे उन पर, इसीलिए इनका एक टाइटल है अबुल मसाकीन, मिस्कीनों के बाप। औरतों में एक औरत का टाइटल है उम्मुल मसाकीन, किसका, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते खुज़ैमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला, उनका भी टाइटल उम्मुल मसाकीन। इतनी ज्यादा जो है वो मिस्किनों की मदद करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में भी ज्यादा दिन तक रहने का शरफ नहीं मिला, 6, 7, 8 महीना थी नबी की जिंदगी में, फिर उनकी वफात हो गई। ये 2 बीवियां खदीजा और ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उन दोनों की वफात हो गई थी। तो ये मिस्किनों की बड़ी मदद करते थे, इसीलिए इनको अबुल मसाकीन कहते हैं। तीसरी खूबी थी हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो सबसे ज्यादा नुमाया है, वो है शुजाअत, बहादुरी, जंग के मैदान तक पहुंचना, और इसी वजह से उनको लश्कर का कमांडर और सिपह सालार भी बनाया गया। मकाम व मर्तबा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1, अहले बैत में से हैं, अहले बैत में से हैं। नंबर 2, साबिकीन अव्वलीन है, शुरू में मुसलमान हुए। और नंबर 3, शहीद भी हो गए। 3 बड़ी चीजें हैं जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में, अहले बैत में से हैं, शुरू में मुसलमान हुए और शहीद भी हो गए। अच्छा, एक और खूबी इसमें कि हिजरत भी की है, और 2 हिजरतें की है, 2 बार हिजरत की, एक हबशा और दूसरी बार मदीने की तरफ, 2 हिजरतें की हैं, तो 2 बार हिजरत करने का सवाब इनको हासिल हुआ है। इनकी जिंदगी से हमें पैगाम, नसीहतें क्या मिलती हैं। पहली बात कि खानदान के साथ, यानी खानदान अगर किसी का बहुत ऊंचा है, उसके साथ ईमान भी है, तो ये अच्छी चीज है। जैसे जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल ले लें आप, जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु हाशिम से हैं, खानदान सबसे ऊंचा है, सैयद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान भी हुए। जबकि इन्हीं के अब्बा की बात कर लो, अबू तालिब की, बनु हाशिम में से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, इस्लाम को सपोर्ट किया, लेकिन मुसलमान नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए।
अब मुसलमान नहीं है तो इसकी वजह से उनका मकाम क्या हो गया, खत्म, कोई फायदा नहीं। हाँ, बस थोड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला सबसे हल्का अजाब उनको देगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी वजाहत की। तो खानदान के साथ ईमान वाला होना भी जरूरी है। दूसरी चीज, खैर के कामों में हमेशा जल्दी करना चाहिए, हमेशा। ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों, अरे यार अभी देख लेंगे, बाद में कर लेंगे ना, फिर बाद में ना मौका रहता ना जिंदगी रहती। अभी मौका मिला, अभी करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह का साबिकू, भागो, दौड़ो, मुसाबका करो, कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे निकलने की नेकियों में कोशिश करो। फस्तबिकुल खैरात, अच्छाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि फितने आने से पहले बादिरू बिल आमाल, नेकियों में, आमाल में जल्दी करो, इससे पहले कि फितने तुम्हारे ऊपर ऐसे गिरे जैसे आसमान से कतरे एक के बाद दीगरे बारिश के गिरते हैं। नेकियां करो, जल्दी करो, खैर के कामों में हमेशा जल्दी करना चाहिए। तीसरी बात, जब बात करो तो बात, गुफ्तगू हमेशा हिकमत और बसीरत के साथ होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं एहसास तो करो, सामने वाले को तकलीफ हो सकती है, बुरा लग सकता है, या इसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। आज देखे किसी को भी कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया, कुछ लिख दिया, वीडियो बना करके डाल दिया, कुछ क्या बोल रहा है, उससे कौम को नुकसान होगा, कम्युनिटी को नुकसान होगा, शहर को नुकसान होगा, हमारे खानदान को, कुछ नहीं सोचता, जज्बात में आया बस उठा करके बोल दिया, पूरी कौम भुगतती है फिर उसकी सजा, पूरा इलाका भुगतता है उसकी सजा। तो गुफ्तगू हमेशा हिकमत और बसीरत के साथ होनी चाहिए। और आखिरी बात, जहां कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, आपकी सुन्नत आ जाए, आपका तरीका आ जाए, आपका फरमान आ जाए, वहां सर झुका देना, समिअना व अताअना, सुन लिया और मान लिया, अमल भी किया। यहूदियों की तरह नहीं कि समिअना व असैना, हाँ सुन तो लिया लेकिन मानेंगे नहीं। हम लोगों को सुनने की बड़ी आदत है, अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद फिर अमल भी करना है, उसकी बात, वो बात मानना भी है, पर अमल भी करना है, उसकी इताअत भी करना है कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो मैं इस पर अमल करूंगा, इसको अपनी जिंदगी के अंदर डाल। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने साल तक हबशा में रह गए, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। जंग बद्र में नहीं आ सके, उहुद में नहीं आ सके, खंदक में नहीं आ सके, खैबर में शरीक नहीं हो सके, मदीने में सारे सहाबा, पूरा खानदान मदीने में है, लेकिन जाफर हबशा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तो नबी के हुक्म पर तमाम चीजें कुर्बान कर देनी चाहिए। यही एक मुसलमान की पहचान और अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सीरत तय्यबा का मुताला करने और उनके मनहज को अपनाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उनकी रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।